the telescope here, and we can create the interference. Now, in case of that case, we did that if the both the mirrors are M1 and M2 are parallel to each other, so M1 and M2 dash, which is the virtual image of mirror M2, both are parallel to each other. So in that case, we obtain circular fringes. However, today we'll do that if the mirrors M1 and M2 are not parallel to each other, then what happens? So this is the case that in the earlier case we have seen that M1 is parallel to M2, M2 dash, not parallel to M2, parallel to M2 dash. However, it is perpendicular to M2. So आज हम ये देख रहे हैं that M1 is not perpendicular with M2, so M1 and M2 dash are not parallel, so they are at certain angle, or we can say that both the mirrors M1 and M2 cut each other at any point. So I'll read it. When the two mirrors are tilted, tilted means both the mirrors are not perpendicular. They are not exactly perpendicular to each other, and therefore the mirror M1 and M2 is not the mirror. M2 is a virtual image of mirror M2. M2 dash is the virtual image of mirror M2. So virtual image M2 dash are not parallel. In this case, the air path between them is wedge shaped. So the air path is not uniform path, is wedge shaped, and the fringes appear to be straight. So it's vice versa. If the air path is uniform and in a straight line, you can say, then the fringes are circular or wedge shaped. If the air path is wedge shaped, then the fringes are straight. So it's vice versa. If one of the mirrors is moved, the fringes move across the field. तो ये बोल रहे हैं कि सपोज आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, एज यू कैन सी इन द इमेज, तो अगर इस कर्सर को मैं यहाँ पे रखता हूँ और अपने M2 को मूव करना शुरू करता हूँ, आगे कर सकता हूँ या पीछे कर सकता हूँ, इन एनी केस, तो ये फ्रिंजेस जो हैं, ये यू विल नोटिस कि जहाँ पे कर्सर था, फ्रिंजेस वहां से इस तरफ या इस तरफ मूव करते हुए दिखाई दे. So fringes will appear to move from point 1 to point 2. So if the mirrors M1 and M2 are not perpendicular, that is M1 and M2 dash are not parallel, so in that case हमें जो दिखाई देगा that would be more or less like a straight line fringes. So अगर मैं कहते हैं किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मानूंगा, अगर M2 को मूव करना शुरू करूंगा, then I'll see that the fringes will appear to move from that point. Depending upon कि M1 को आगे मूव किया है, पीछे मूव किया है, तो fringes will appear to move towards left or right. So position of any bright fringe is taken up by the one next to it. अगर ये वाली fringe थी, मैंने M1 को मूव किया, this right fringe ये इसकी जगह ले ली. ठीक है जी. The fringes can be counted as they pass the reference mark. तो ये रेफरेंस मैंने रख लिया और मैं काउंट कर लेता हूँ कि कितनी फ्रिंजेस इस रेफरेंस मार्क से पास कर चुकी हैं. अगर किसी पॉइंट पे M फ्रिंजेस पास करते हैं और M1 को मैंने D डिस्टेंस मूव किया था, उस दिन हमने बोला था कि अगर M1 और M2 का डिस्टेंस जो है वो D है, तो इन दैट केस इस 2 को इधर लेके आते तो 2D बना दिया था हमने उससे. So we have studied that this is 2D, right? So इस केस में वो प्लस जो λ/2 वाला फैक्टर मैंने उस दिन बोल रहा था, इस केस में वो नहीं आएगा, बिकॉज इस केस में कुछ भी सेंटर नहीं है हमारे पास. सर्कुलर फ्रिंजेस में ऑलवेज वी हैव अ पॉइंट विच इज व्हाट वी कॉल अ सेंटर. हाउएवर लीनियर फ्रिंजेस में कोई भी सेंटर नहीं आएगा, तो वो λ/2 वाला फैक्टर इसमें नहीं आएगा. So this is just 2D is equal to m lambda condition for a bright fringe, और lambda is equal to 2D by m. इसी को क्वेश्चन हो पुराने में और नए में मिला के वो पूछ सकते हैं. हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी. लैम्डा/2 हम
प्लस या माइनस करते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम पे। हाँ जी, वहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, आप क्यों निकले थे लैंड? इस केस में क्या है कि जो उसमें नॉर्मल सर्कुलर फ्रिंजेस में क्या होता है कि जो एक सेंटर आता है फ्रिंजेस का, ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, वो फैक्टर होगा, लेकिन जैसे आप ये देख रहे हैं ना, अगर मैं इसी पिक्चर को बहुत बड़ा कर लूं तो यू विल डेफिनेटली सी अ सेंटर, बट इस केस में फ्रिंजेस ऐसी दिखती हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ही दिखती है और हमें एक वो सेंटर वाला डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा, इस वजह से हम वो फैक्टर जो है वो कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इस केस में आप कुछ भी डी मूव करोगे क्योंकि इस केस में आपके पास एक सेंटर नहीं है। उसमें क्या था, इस सेंटर में से जो फ्रिंजेस थी वो हमें निकलती हुई या उसमें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, तो वी हैड अ रेफरेंस। इस केस में क्या है, हम एक रेफरेंस अपनी तरफ से ले रहे हैं, ठीक है, तो वी डोंट हैव अ सेंटर, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, हम एक अपनी तरफ से ले लिया कि ये ब्राइट फ्रिंज है, डी है, तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लगा दी सिंपल, ठीक है। उस केस में होता था कि हमारे पास एक सेंटर था तो हम उसके रेफरेंस पे ही चलना था। इस केस में हम एक ब्राइट फ्रिंज के रेफरेंस पे चल रहे हैं। उस केस में अगर हम अपने सेंटर के रेफरेंस से चलते हैं तो देन दैट इज अ डार्क स्पॉट, तो उस डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए हमने ये किया, लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ भी डार्क स्पॉट नहीं है एट द फर्स्ट। हाँ जी बच्चे बोलो। एनीवन एल्स? जैसे समझ आया बच्चे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा बोलो। सर, ये फ्रिंजेस वाला पार्ट समझ नहीं आया अच्छे से। कौन से वाला, ये वाला? यस सर। ये मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके जो मिरर्स हैं वो टिल्टेड है, तो ये तीनों समझ आ गए? यस सर। हेलो, हाँ जी, आप आपका नाम क्या है? कशिश। हाँ जी कशिश। बच्चे ये तीनों डायग्राम समझ में आ गई, ये ऊपर वाली? यस सर। ओके, तो ये समझ आ गई, तो उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों टिल्टेड है मिरर्स, इसका मतलब कि M1 और M2 जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, और M1 और वर्चुअल इमेज M2 डैश ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो इन दैट केस जो वो बोल रहा है कि एयर पाथ होगा वो वेज शेप्ड है। वेज शेप्ड मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, किसी पॉइंट पे पाथ जो एयर पाथ है वो कम है, किसी पॉइंट पे ज्यादा है, इसमें यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। समझ में आई बात ये? सर यहीं पे मुझे डाउट हो रहा है कि जो नीचे जो उन्होंने फ्रिंजेस बनाई हैं, हम उसके कंपैरिजन में ऊपर देख रहे हैं, या हमने M1 और M2 डैश को हमने किया है तो हमें एज फ्रिंजेस की जो शेप है वो रिजल्ट में मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, हमने ये चीज की है और हमें ये दिख रहा है, दिस इज द रिजल्ट। ओके सर। ठीक है, फ्रिंजेस को हम पहले नहीं ना बना सकते वैसे, ठीक है, दिस इज इनर हैंड, ठीक है, हम M1 और M2 को मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको टिल्ट कर सकते हैं, इसीलिए बोला ना कि व्हेन द टू मिरर्स आर टिल्टेड, ठीक है, दिस इज इनर हैंड, हम टिल्ट अपनी तरफ से करेंगे, दिस वुड बी द रिजल्ट, दिस इज व्हाट वी विल सी। सर जो M1 है वो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, राइट? और जो M2 है उसको हम लोग टिल्ट करेंगे तो ही M2 डैश की इमेज ऐसे आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं ना अभी आज मैंने वो वाला पेज नहीं इसमें डाला जिसमें वो डायग्राम है, अगर आप किसी के पास सुब्रमण्यम की डायग्राम है ना तो उसमें वो बनाए हुए हैं स्क्रूज M2 के पास, तो M2 के में स्क्रूज लगे हुए हैं जिससे आप उसको टिल्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक थैंक है, यू होगा सर। फिर? यस सर। थैंक यू एनीवन सर। एल्स? ओके, सो मैंने बोला था कि एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज सिंपल माइकल्स इंटरफेरोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एप्लीकेशन आपको समझाई जाए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर व्हाट पर्पस वी कैन यूज दिस माइकल्स इंटरफेरोमीटर। सो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बुक में, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन आल्सो रीड देम। I'll just go through the first application, that is the most important one. So first application is we can find the wavelength of given monochromatic source of light.
सो अगर हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स है एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, कोई स्टार से लाइट आ रही है, किसी भी चीज से लाइट आ रही है, वी डोंट नो कि इसकी वेवलेंथ क्या है, सो यूजिंग दिस इंटरफेरोमीटर वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अगर दो वेवलेंथ्स हैं, सपोज आपकी जो लाइट है, एक दिन उस बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ, और मोनोक्रोमेटिक नहीं है लेकिन साथ साथ वाली वेवलेंथ्स है, ठीक है, जैसे सोडियम के केस में होता है कि उसकी दो वेवलेंथ उसमें ऑब्जर्व होती है, वी कंसीडर इट एज अ मोनोक्रोमेटिक बट एक्चुअल में सोडियम में दो वेवलेंथ्स है, ठीक है, आपने शायद पढ़ा हो। सो डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ्स और रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट, या स्पेक्ट्रल लाइंस आपने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो यू कैन इग्नोर दिस वर्ड। नहीं, आपने शायद प्लस टू में पढ़ा है ना, वो आपने वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, वो बाल्मर सीरीज वगैरह, और तो उसमें ये चीज आती है। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ वेरियस थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है जी। तो आप कुछ भी मटेरियल लगा के उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल है वो कहाँ पे लगाओगे, बीच में कहीं भी लगा दोगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल, और उसकी थिकनेस भी का जो है वो भी आप लगा सकते हो, इसकी थिकनेस कितनी है। फोर्थ वन इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर यू राइट नाउ। अगर फिर भी आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं इनमें से कोई भी वेवलेंथ जो है कोई भी सॉरी एप्लीकेशन जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, वही कंडीशन दोबारा से लगाएंगे। माइकल्स इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज केप्ट एट एस। आपके पास दो मिरर्स हैं M1 और M2। इस केस में हम दोनों परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं। परपेंडिकुलर है तो वी हैव टॉक्ड कि सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। इफ द मिरर M1 is moved forward or backward, the circular fringes appear or disappear at the center. तो वही मैंने बोला था कि या तो आप उसको फॉरवर्ड मूव करोगे तो आपको लगेगा कि फ्रिंजेस बढ़ती जा रही हैं, सेंटर में से फ्रिंजेस निकल रही हैं, ऐसा ऐसा लगेगा। अपीयर इसलिए बोला है, ठीक है, अपीयर का मतलब लगना, ठीक है, होता नहीं है ऐसे, बट यू जस्ट सी कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बैकवर्ड का मतलब, अगर बैकवर्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारी जो जो पॉइंट सेंटर पॉइंट है वो एज अ सिंक काम कर रहा है और सब फ्रिंजेस उसमें मिल रही है एट द सेंटर। Now, as the mirror is moved through a non-distance d and the number of fringes disappearing at the center is counted. Disappearing बोलो या appearing बोलो, doesn't matter, ठीक है। हमने मिरर कौन सा मूव कर रहे हैं हम, M1, M2 को टिल्ट करते हैं, मूव जो है वो हमेशा M1 को करते हैं। टिल्ट हमने करना नहीं है बिकॉज वी हैव टेकन द केस वेयर M1 and M2 are exactly perpendicular. So now as the mirror M1 is moved through a non-distance d and the number of fringes disappearing at the center is counted. तो मुझे पहले नहीं पता कि जो उनमें डिफरेंस था M1 और M2 में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मुझे वो नहीं पता, ठीक है। मुझे ये पता है कि मैंने M1 को कुछ डिस्टेंस मूव किया है, सपोज 2 माइक्रोमीटर मूव कर, राइट। सो देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर ले कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो आगे या पीछे हो रही। Suppose D1 is the initial thickness of the air film between the mirror M1 and image of M2 corresponding to bright fringe of order M1. Wait, दोबारा शॉर्ट में बोलूंगा। Suppose D1 is the initial thickness of the air between mirror M1 and M2. कहने का मतलब कि जो पहले शुरुआत में थिकनेस थी जो मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है, दैट इज D1, ठीक है। आई डोंट नो कितनी थिकनेस है, ठीक है, उन दोनों के बीच M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता जो कि D1 है मान लो, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्राइट फ्रिंज, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज थी वो मुझे M1 दिखाई दे रही थी। आफ्टर मैंने M1 को D डिस्टेंस मूव कर लिया, अब जो मेरे पास नई थिकनेस है वो D2 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिंजेस जो पास हुई हैं वो MN है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस है MN है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी हैं, ठीक है। इस केस में 2D इज इक्वल टू M लैम्डा, 2D इज इक्वल टू M लैम्डा, बोथ केस में ये आ गया, ठीक है जी। बाय सब्सट्रैक्शन वी गेट
दोनों का डिफरेंस किया D2 माइनस D1, D2 अब का डिफरेंस है M1 और M2 का, D1 पहले का था, दोनों का डिफरेंस आएगा D, दिस वी नो बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस वी हैव मूव्ड, ठीक है, ये 2 माइक्रोमीटर आएगा। M1 और M1 को MN और M1 को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच वी हैव काउंटेड कितनी फ्रिंजेस पास कर गई, ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाय n, ठीक है, वेयर D इज द डिफरेंस जो हमने मूव, डी इज द डिस्टेंस जो हमने M1 को मूव किया है, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, n इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हमने टेलीस्कोप से देख के काउंट किए हैं, दैट दिस इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस which has been passed through a particular point, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है हम फाइंड कर सकते हैं टू अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू। एनीवन हैविंग अ क्वेश्चन ऑन दिस एप्लीकेशन यू कैन आस्क। हेलो, हाँ जी, सी आपका क्वेश्चन? हाँ सर। नो, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यू टॉपिक है अपना न्यूटन्स रिंग। यदि पहला सेम वे आप पहला यदि कंस्ट्रक्शन पढ़ांगे देन देखा कि हाउ टू एक्सप्लेन, ठीक है। इन दिस केस एक पॉइंट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, सॉरी, व्हिच इज एस। इस केस में सोडियम लैंप लिया हुआ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोस्टली केसेस में सोडियम लैंप होता है। सोडियम लैंप की जो लाइट है उसमें 2 वेवलेंथ होती है, however the difference is such small that we can consider it as a monochromatic source of light. now तो एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में किया था, एक लेंस L लगाया विच इज अ कन्वेक्स लेंस, उससे लाइट पड़ी। इस केस में हमें बीम स्प्लिटर नहीं चाहिए, इसलिए हमने सिंपल ग्लास की एक प्लेट लगाई, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ that in this case we don't need a beam splitter because उस केस में हमें 2 मिरर से रिफ्लेक्ट करवाना था इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसलिए हमने बीम स्प्लिटर लगाया था। न्यूटन रिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में वी डोंट नीड अ बीम स्प्लिटर, सिंपल ग्लास प्लेट है जिसने इस लाइट को नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया है जी। ये एरोज दिख रहे हैं ऊपर वाले, इट मींस कि लाइट यहाँ से आई और नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और स्ट्राइक करके वापस ऊपर जाएगी, ये वाले एरो वो शो कर, वापस ऊपर जाके वो सीधा माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से वी कैन सी कि जो न्यूटन रिंग्स है वो कैसे दिखती है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज व्हाट वी सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में न्यूटन रिंग्स ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। और ये वो पिक्चर है जो दिखाई है कि ये बीच वाला जो है वो डार्क होगा, बाकी फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे चलता है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, एक sodium lamp है which is a monochromatic source of light. Interference, whenever you want to perform an experiment including interference, then you have to use a monochromatic source of light and you have to check whether the light different lights are coherent or not. लास्ट वाले में नहीं थी, हमने बना लिया था ग्लास प्लेट डाल के। सो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस, जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट एल पे, जब वो एल पे पड़ता है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। जो एल है वो एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। देन ये ग्लास प्लेट लगाई है व्हिच इज एट 45 डिग्री। माइंड इट, दिस इज नॉट द ग्लास प्लेट, नॉट अ बीम स्प्लिटर, दिस इज अ ग्लास प्लेट। सो देयरफॉर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू दिस सिस्टम, इसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है कि ये क्या सिस्टम है, ठीक है। इन अ मिनट विल डिस्कस अबाउट इट। दिस सिस्टम से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और माइक्रोस्कोप पे हम इसको देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये सिस्टम में क्या है, दिस इज एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर ये ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट दोनों कर रही है ना?
नहीं, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। द डायग्राम इज इन 3D, ठीक है, इसलिए आपको जो है वो दिखाई ऐसे दे रहा है कि इसी से वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है जी। सिस्टम की एक्चुअल में जो ये चीज है ना, ये इन अ राउंड शेप है, ओके ठीक है जी, इन अ राउंड शेप है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। So there is a plain glass plate, ठीक है जी, नॉर्मल ग्लास की शीट है, ऊपर एक लेंस लगाया हुआ है विच इज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये आपके लिए एक न्यू चीज है, आपने अभी तक कन्वेक्स लेंस पढ़ा है। ये कन्वेक्स लेंस नॉर्मली इस शेप का होता है। ये अगर किसी कन्वेक्स लेंस को बीच में से काट दूं मैं, जैसे इस केस में किया हुआ है, कट अ कन्वेक्स लेंस टू द सेंटर, तो ऐसी एक शेप बनती है, कर्व्ड शेप विच इज नोन एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। दिस इज न्यू टू यू, तो रिकॉल कर लो दोबारा से। प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस कट एट राइट एट द सेंटर। So, for the theory part introduction, Newton rings are an example of fringes of equal thickness. Newton rings में जो fringes बनेगी वो equal thickness की बनेगी। Don't worry about it right now because this is will study. ये आपका एक टॉपिक आएगा, fringes of equal thickness, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं। Don't worry about it right now. So Newton rings are example of fringes of equal thickness. Newton rings are formed when a plano-convex lens P of large radius of curvature placed on a sheet of plain glass AB is illuminated from top with a monochromatic light. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आने का मतलब है कि जैसे ये लेंस है, ये छोटा लेंस है, इस केस में द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी वेरी लेस, बट वी नीड अ लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो, ठीक है, ताकि जो न्यूटन रिंग्स है वो अच्छी तरह से दिख पाए, ठीक है जी। तो दिस इज अ लेंस विद अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इस लेंस को पूरा करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा जो वेरी लार्ज हो, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको प्लस में पढ़ा हुआ है क्या होता है। ये लिया, ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट AB and illuminated with a monochromatic source of light, yes, ये लिखा हुआ। The combination forms a thin circular air film of variable thickness in all directions around the point of contact of lens and the glass. So this is the point of contact. दोबारा सुन लो, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसमें प्लेनो कन्वेक्स लेंस और द प्लेन ग्लास प्लेट जो है वो मिल रही है, ठीक है जी। तो प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस जहाँ पे मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। इसके मैं अगर सपोज वन डिस्टेंस इधर जाऊं या वन डिस्टेंस इधर जाऊं, तो ये वाली जो हाइट है, जो एयर फिल्म की हाइट है, क्या वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है जी। अगर मैं टू इधर जाता हूँ तो ये भी सेम रहेगी, ठीक है। पर वन इधर पे, यहाँ पे हाइट डिफरेंट है, 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 ठीक है। वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। दिस कॉम्बिनेशन फॉर्म्स अ थिन सर्कुलर एयर फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस इन ऑल डायरेक्शंस। वेरिएबल थिकनेस का मतलब है यहाँ पे हाइट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे, तो variable thickness in all directions around the point of contact, around this point of contact, इसके अराउंड, बिकॉज ये डायग्राम 2D में है, एक्चुअली द सिस्टम इज इन 3D। सो ग्लास प्लेट रेक्टेंगुलर होगी, उसके ऊपर एक नॉर्मल सर्कुलर शेप का लेंस पड़ा होगा, ठीक है जी, विच वुड बी अ वेज शेप, और यू कैन से अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होगी बिकॉज इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ यहाँ पे ये जीरो हाइट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे। नाउ बिकॉज दिस इज इन सर्कुलर, तो सर्कल में काफी सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी सेम होगा। अगर 3D में देखें तो पीछे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। सो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बिल्कुल डिस्टेंस ऑफ एयर, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म जो है वो सेम है, फिर उसके बाद अगले पॉइंट की थिकनेस ऑफ एयर फिल्म सेम होगी, फिर उसके बाद अगले पॉइंट। तो
तो इसीलिए जो फ्रिंजेस है वो ऐसी ऑब्जर्व सर्कुलर ऑब्जर्व होते हैं, because these all are made up from a point where there is a equal thickness of the air film which is trapped between a plano-convex lens and plain glass plate. This could be a tricky for people, ठीक है, जिनको 3D में थोड़ा समझने में मुश्किल आती है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ओपन होते ही मैं ये सिस्टम देखने चलेंगे। दिस इज आल्सो अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। This combination forms a thin circular air film of variable thickness, में बात कर ली, in all directions around a point of contact of lens and a glass. The locus of all points corresponding to specific thickness of air film falls on circle. तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पे एक टिक लगा लूं, फिर यहाँ पे लगा लूं, यहाँ पे लगा लूं, सारे मिलाऊंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है जी। So locus of all point corresponding to specific thickness, एक थिकनेस वाले सारे पॉइंट मिला लो, ठीक है जी, वो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और अराउंड इसके हमें सर्कुलर फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। Consequently, interference fringes are observed in the form of series of concentric rings with their center at O. So consequently, interference fringes are observed in form of series of concentric rings with their center at O. तो फ्रिंजेस जो है वो ऐसी ऑब्जर्व होंगी, ऐसे लगेगा कि सर्कुलर शेप फ्रिंजेस हैं जिनका सेंटर जो है वो O पे है, ठीक है जी। तो सब कंसेंट्रिक होने का मतलब है कि सबका सेंटर एक होगा विच इज एट O, और सब फ्रिंजेस जो हैं वो सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है जी। Because obviously Newton originally observed these concentric circular fringes, and hence they are called monochromatic light from an extended source. Hello? Excuse me sir. हाँ जी बच्चे। सर ये जो लोकस वाला पॉइंट अभी आप बता रहे थे कि ये एक बार एक्सप्लेन करते दोबारा से। हाँ जी, आपका नाम क्या बच्चे? तनीषा। तनीषा, इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो एयर फिल्म, दिस इज द एयर फिल्म, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है जी। सपोज दैट हाइट इज x, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से मैं इधर देखूंगा तो भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, यस सर। that height would be same as this point, because यहाँ से मैं इतना इधर गया, यहाँ से इतना इधर गया, तो ये हाइट सेम हो गई कि नहीं होगी? हाँ जी। हाँ जी। तो because this thing is in 3D, तो इसके जो पीछे वाले सिस्टम में भी वैसा ही, इधर भी वैसा, इधर भी वैसा, तो एक ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हाइट सेम होगी। हम सारे वो पॉइंट मार्क कर ले, अगर उनको मैं मिलाऊंगा तो वो एक सर्कल बन जाएगा। 3D में शायद मैं उतना अच्छा समझा ना पाऊँ, बट ठीक है, समझ लगा कुछ? हाँ जी सर। नहीं, अगर नहीं लगा तो बता दो। नहीं सर, समझ लग गया। ओके, अगर कुछ भी चीज समझ नहीं लगती, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन सी इट इन 3D एंड इफ एनीवन कैन नॉट सी इट इन 3D, सो दैट्स नॉट योर फॉल्ट। इसलिए बट आप मुझे बता दो, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई वीडियो वगैरह या कुछ ऐसा तो दिखा दूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। So monochromatic light from an extended source S is rendered parallel by our same line. Here it is incident on a glass plate which is 45 degree and is reflected normally down onto a plano-convex lens. That glass plate part of light incident on the system is reflected from glass to air boundary, stay pointing. Now this is what we want to understand. तो यहाँ से suppose ray of light I see, तो यहाँ से D से, because this is also a glass plate ना, यहाँ से भी कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो एक यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, एक आई वो इससे पास की, लेकिन कुछ बिकॉज ऑफ वो ग्लास है इसलिए कुछ से रिफ्लेक्ट भी हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट जी से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। सो एक ही बीम ऑफ लाइट थी, सी से आ रही थी, ठीक है, डी पॉइंट तक पहुंची, सम पार्ट ऑफ इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डी टू द 2 and some part of it get reflected from J to 1.
part of incident beam on the system is reflected from glass to air boundary. This is glass to air boundary. अभी glass में है रे और आगे air है, तो glass to air boundary से ये गया, ठीक है. And some part of remainder of the light is transmitted through air film. It is again reflected from air to glass boundary. अब जो boundary है वो air to glass है, ठीक है जी. Air to glass boundary है, ठीक है. तो point जी. Anyone can tell me, मैंने उस दिन बताया था कि अगर जो रिफ्लेक्शन है वो एयर टू ग्लास बाउंड्री पे होती है तो एक फेज डिफरेंस आता है, उसको क्या कैसे डिनोट करते हैं? पाई से पाई इज द फेज डिफरेंस. पाथ डिफरेंस में क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 लैम्डा. So the two rays reflected from the top and bottom of the air film are derived through division of amplitude from the same incident ray CD and are therefore coherent. ये बोल रहा है कि because ये जो दोनों 1 और 2 है, इसमें एम्पलीट्यूड का फर्क हो सकता है, यानी कि इंटेंसिटी का फर्क हो सकता है. However, they are both derived from, दोनों एक ही से आ रही हैं, CD से ही आ रही हैं, ठीक है. The rays 1 and 2 are close to each other and interfere to produce darkness or brightness. दोनों रेज इनकोहेरेंट है, इसलिए इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी. द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस, एज वी ऑलरेडी नो, between the two reflected rays, which in turn depend upon thickness of air film at the point of incidence. ठीक है, तो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा. ऑब्वियसली अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो D से J का डिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं और D से J का डिस्टेंस कम होगा. जी, तो दिस इज द डिस्टेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है जी, हाइट बोल लो. हेलो, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर ये जो ग्लास प्लेट है ये नीचे से सिल्वर्ड है क्या? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, which in turn depends on the thickness of the air film at the point of incidence. अब वो फैक्टर तो आपने अपनी तरफ से बता ही दिया मुझे, ठीक है. y ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू e cos r minus lambda by 2. lambda by 2 फैक्टर क्यों आ रहा है? You have told me because इसमें कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है? एयर टू ग्लास बाउंड्री वाली, ठीक है. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. इसमें कौन सी फिल्म है, ठीक है. अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट लिक्विड में यानी कि वाटर में करूंगा तो इसमें म्यू की वैल्यू मुझे फिल करनी पड़ेगी, बट द फिल्म हियर इज एयर फिल्म. सो इसलिए इस केस में मैं ये बोलूंगा कि जो म्यू है वो 1 है, ठीक है. आपको दिखाने के लिए जो डायग्राम है उसमें लाइट रे इधर से आई है और इधर को जा रही है. हाउएवर वी हैव सीन कि लाइट रे बिल्कुल सीधी आती है, नॉर्मल इंसिडेंस है, इसलिए जो कोई एंगल नहीं क्रिएट होगा, इसलिए cos r भी 1 होगा एंड lambda is equal to 2t minus lambda by 2.